मैं ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣੇ ਹਾਂ, 2 ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਅਸੀਂ 2 ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਐਸਪੀਐਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਪਲਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਯੂਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨਸ ਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਜੌਬ ਲੱਭੋ, ਫਿਰ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭੋ। ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ। ਕਾਸ਼ ਆਯੁਸ਼ੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਣੇ, ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ICSE ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। RED red, BLUE ਕਿਵੇਂ ਹੈ? blue, RED BLUE PINK pink, 2 6 12 कलर्स नेम सुनाओ। रेड ब्लू पिंक संडे मंडे डेज ऑफ वीक सुनाओ। आते ना संडे मंडे? खड़े हो जा। यही चीज़ करते करते मैं डिवेलप किया। जिदा जिदा ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ और एनहांस ਹੁੰਦੇ ਗਏ, और ਵਧਦੇ ਗਏ। बट मैनू अपने आप ਨੂੰ प्रूफ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ मतलब एक ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੱਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ KKHD ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ जो यकीन नहीं सीगा मैं ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गया, सिलेक्शन हो गई और होपफुली आगे भी अच्छा करूं।
नाम सरोज है। तो ये बच्चा लाडला है हमारा। तो बाकी देखो माँ प्यो नूं तो यही हुंदा कि बच्चा अगे तक ही जाए। पढ़ाई च भी ठीक सी, हर बार फस्ट ही आंदा सी। नर्सरी तो LKG तो सब तो फस्ट ही आया, 9वीं तक फस्ट आंदा रहा। तो अपना भी मन ये सी कि सानूं मेहनत करते कोई डर नहीं, साड़ा बच्चा अगे जाना चाहिए। तो चलो गया, जिन्नी क साढ़े च हिम्मत सी असीं उन्ना करवाया। बच्चे नूं BEd करवाई है। हुण स्कूल पढ़ांदा वा, ट्यूशनां भी पढ़ांदा वा। तो चलो अगे तक इनूं शौक सी एक्टिंग दा भी। कदी रामलीला होनी उहदे च भी चल जाना, उहदे च भी बनदा रहा वा। इनूं शुरू तो शौक रहा, चलो अगे अगे वधदा रहा। हुण जिੱਥੋਂ तक पहुँच गया तो कहने होर अगे तक पहुँचे तो इसकी तरक्की हो। साढ़े घर च कभी किसी की नकल तार देनी, कभी किसी की, किन्ने भी आना, किसी ने भी आना उसकी नकल तार देनी, तो सानू ठीक लगता सी। ते असीं फिर अगे बताता, चलो सानू चंगा लगता सी। मम्मा मैं डॉक्टर वगैरह मैं नहीं करनी है डॉक्टरी, मैं डॉक्टर नहीं बनना। मैनू नहीं समझ आती है डॉक्टरी, मैं नहीं कर सकता है डॉक्टरी। मेरे को किसी दी खून, किसी का शरीर मेरे को नहीं देखा जाता, मेरे जिन्ना दिल नहीं है। मैं जे मैं कितने गलती ना डॉक्टर बन भी गया तो मेरे को एवं गलत वाल तो ऑपरेशन होंगे, एवं नुकसान होएगा। मैं शुरू तो ही मैं एक्टर बनना चाहना है। ते मेरे जो कीड़ा हैगा है मैं करना चाहना है जी। जो मैं स्कूल च भी बहुत टाइम में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो मैं फर्स्ट भी आया हूँ। मेरे आर्ट टीचर मैंने कहते रहे कि मैं तू कुछ कर सकता है तो इस फील्ड च ट्राई क्यों नहीं करता। और मैनू भी लगता है कि मेरे च इतनी क्वालिटीज हैगियां वै कि मैं एक एक्टर बन सकता। तो गल करते डॉक्टर की मेरे समझ तो बाहर है, मैं नहीं बन सकता। बाकी गल है कि जे तुसीं चाहते हो कि मैं यही करा तो ਇਹਦਾ एक हल है मेरे को। ये कर सकते हैं कि मैं चलो मैं डॉक्टरी भी कर लेना। डॉक्टरी करके तो मैं जो मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी मैं बॉम्बे निकल जाऊंगा, नवे नवे ऑडिशंस दूंगा। हाँ जी नहीं कुछ बनेगा तो मेरे को डॉक्टर की डिग्री तो होएगी, मैं आके छोटा मोटा क्लिनिक खोल लूँगा, काम कर लूँगा। बट सिर नहीं निभा हो देता थोड़ा, बट मैं ट्राई जरूर करूँगा उस चीज़ के लिए। तो ठीक है कि ये स्टेबिलिटी नहीं है पर चांस बहुत ज़्यादा है। एक मेरे मन को सुकून मिलने वाली चीज़ है। देखो ये कोई भी चीज़ है, कोई भी बंदा अपनी जान तो बगैर नहीं रह सकता। तो एक्टिंग एक प्रोफेशन नहीं है जिन्होंने मेरी जान, कि मैं अपनी जान तो बगैर कितना रह लूँगा। इस तो बिना मैं डॉक्टरी भी कर लूँगा, ये भी ना कर लूँगा। वो ट्राई करके जो बाई चांस वो मेरा नहीं कुछ बने तो एक छोटा जहा क्लिनिक खोल के मैं सैटिस्फाई होऊंगा कि मैं ट्राई तो किया कि नहीं कुछ बनया, वो अलग गल है। मैं ट्राई तो किया, ये नहीं कि मैं ट्राई नहीं किया और बिना ट्राई किए मैं हार मान ली। मैं ट्राई करूँगा, ट्राई जरूर करूँगा, जिन्नी कुछ बनया फिर आप करूँगा। ठीक है मैं ये लिए पापा भी खुश होंगे कि मैं उन्होंने दोनों चीज़ें लाडला पर उन्होंने दोनों चीज़ें कर रहे हैं, अपनी भी चीज़ ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने डॉक्टर बनाना सपना से और वो भी स्टडी में नाल कर रहे हैं। ठीक है ना, थैंक यू। सवेरे उठता है, नहाता जाता, मंदिर जाता वा, एक अपने भगवान का टाइम है। बाकी सताया नहीं, कोई सता नहीं सकती, ये सच्चाई है कि सानू सताया सच्ची नहीं है। कोई ये नकल नहीं तार के दसी, कुछ नहीं है, सच्चाई है। तो मेरे बच्चे सताया दोवां ने, 2 बच्चे हैं मेरे, दोवां ने सताया। बाकी भगती च हैगा, नरात्या मेरे पूरे रखता, माता रानी का भी पूरा करता रहा, सोमवार के वर्त भी रखता है।
तीसरी क्लास दी आ इस भी फर्स्ट ही आया वा जो भी स्कूल जाते पढ़ते ही तो नर्सरी तो लैके 9वीं तक फर्स्ट ही आए ने 8वीं तक भी फर्स्ट ही आया वा राजीव कुमार है इसका नाम तो ये पढ़ने से बहुत लायक से। देखो इंदु, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। वो जब मैंने तुझे पहली बार देखा तो मुझे बाकी लड़कियों जैसे ही लगी। दूसरी बार देखा तो लगा कि कुछ स्पेशल लगी। तो जब तीसरी बार तुझे तुम्हारे घर की सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो पता ही नहीं लगा कब सीढ़ियों से तुम दिल में उतर गए। चौथी बार देखा तो मम्मी बोली कि इससे शादी कर ले। मैंने तो ना बोल दिया था, लेकिन जब 5वीं बार देखा तो मंदिर के बाहर देखा तो कुछ और स्पेशल लगी। ऐसे 5वीं बार 6वीं बार काउंटिंग करने लगूंगा तो शायद 100 से पार हो जाए। तो सुना तुझे एक बात कहनी थी, इंदु आई लव यू। परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि साडा बच्चा अगे तक जावे, जीत के आवे ते अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। मेरी बात सुनिए बावरी जी, बावरी जी सुनिए, फिर से रूठ गई बावरी जी। तो काका प्लीज हेल्प। मगा शादी के बाद भी प्रॉब्लम तो आते रहेंगे और वहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, उससे मेरा काम भी नहीं बिगड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। एक तीर 2 निशान। वाह मेरे अर्जुन। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣੇ ਆ, 2 ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਸਿਬਲਿੰਗ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਆ। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਲੇਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਮਾ ਮੇਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਊਸਮੇਡ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡਿਊ ਟੂ ਆਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ KKHT ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇੰਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਟਰਸਟ ਫੈਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਟਰਸਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਿਆ, ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਧਿਆ। ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਦਵਾਂ। ਫਿਰ TV ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਔਰ मैं नहीं सी सोचा कि लास्ट तक मैं पहुंचूंगा। और लकली बाय गॉड ग्रेस बाय माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स मैं ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्शन हो गई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया ड्यूरिंग जिन्ना भी लास्ट राउंड तक पहुँचते जिन्हें भी एक्सपीरियंस लिया, जो भी वीडियोस भेजिया उन्होंने कमेंट्स मिले, बहुत अच्छा लगा कि एक चलो अपने आप से बिलीफ सिस्टम बढ़ाने का मैंने सपोर्ट मिला कि वाकई कुछ ना कुछ तो है जिहड़ा मैं इत्थे तक पहुँच गया और इहदे जरिए मैं होर एफर्ट्स देवां, होर करां ते शायद मैं इस इंडस्ट्री दे विच, इस सैक्टर दे विच, इस लाइन दे विच मैं कुछ ना कुछ कर जावां। तो बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए, लगा शायद एक छोटी सी उड़ान मिल सकती है।
Hello everyone. Today I am from Pearls International School. I want to share my views regarding our staff member Mr. Rajiv Kumar. He is working here as a maths teacher with us from last 2-3 years, but yet he is not with us. He left the job because of some his personal problems. But we are very glad to know this कि he is selected for किसमें कितना है दम. तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि वो इस टैलेंट शो के लिए सिलेक्ट हुए हैं. उन्होंने एक्टिंग के फील्ड में अपने आप को आगे लाए हैं और अपने टैलेंट को इस प्लेटफॉर्म पे ले जाके काफ़ी बड़े लेवल पे प्रेजेंट किया है और अपने अंदर के कलाकार को जगाया है. तो हमें बड़ी खुशी हुई जानकर आज कि वो इस फील्ड में उतरे हैं. वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम कि आज उन्होंने अपने हमारे ही स्कूल का नाम और बच्चों के लिए भी और हमारे लिए बड़े गर्व का मौका दिया है कि वो इस फील्ड तक और इस स्टेज तक पहुँचे हैं. हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हमें बड़ी खुशी आज जानकर कि वो अपने टैलेंट को लेके आगे जा रहे हैं. क्योंकि उनका जो रुझान था वो शुरू से इस तरफ था, क्योंकि वो बच्चों के साथ भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में, स्टेज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे और उनका जो बच्चों के साथ बिहेवियर है वो बड़ा फ्रेंडली था. बच्चे बड़ा मिस करते रहे उन्हें. एंड ही इज़ वेरी फ्रेंडली विद द स्टाफ मेम्बर्स ऑल्सो. उसका वर्किंग और उसका टीचिंग जो है वो बहुत अच्छा है और हम होप करते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज़ करेगा. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू किसमें कितना है दम कि टू गिव सच अ टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म टू ईच एंड एवरी वन फॉर देयर क्रिएटिव थिंग्स लाइक ड्राइंग, पेंटिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ जो भी ये कंडक्ट कर रहे हैं. बहुत खुशी की बात है. ऑलरेडी भी हम इनसे वाकिफ़ हैं क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो एक स्टूडेंट है जोवन, वो भी इनके वहाँ पे जाके काफ़ी आगे तक प्रमोट हुआ था. तो हमें बड़ी खुशी हो रही है जानकर कि हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स भी आज इनके साथ जुड़ गए हैं. हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं फ्रॉम द बिहाफ ऑफ पर्ल्स फैमिली. सबसे पहले सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद. यहाँ पे मेरा नाम ज्योति रानी है और मैं पर्ल्स इंटरनेशनल में एज अ पीजीटी केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ. एंड हम बहुत खुशी हुई जान के कि राजीव जो कि हमारे स्कूल के मेंबर रह चुके हैं, किसमें कितना है दम में एक फाइनलिस्ट के तौर पे ये सिलेक्ट हो चुके हैं. और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक राजीव जी आपको. और ये यहाँ पे एज टीजीटी मैथमेटिक्स थे और अब साथ में बच्चों को एज ए कोकुलर एक्टिविटीज़ में डांसिंग, एक्टिंग भी सिखाते थे. और मुझे बहुत खुशी है कि ये साथ में उसी फील्ड में सिलेक्ट हो गए हैं. मेरी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ हैं. बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी. नमस्कार. मैं पर्ल्स इंटरनेशनल की स्टाफ मेंबर हूँ और राजीव सर हमारे साथ पिछले 2 साल से पढ़ा रहे थे बच्चों को. इनको एक्टिंग का बड़ा क्रेज़ है और हम बड़े हैप्पी हैं, बड़े खुश हैं कि राजीव सर फाइनलिस्ट एज अ फाइनलिस्ट सेलेक्ट हुए हैं किसमें कितना है दम. हम सारे स्टाफ मेंबर राजीव सर को बड़ी शुभकामनाएं देते हैं कि वो इस कंपटीशन में जीत कर आएँ और अपना और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें. थैंक यू वेरी मच. हम सब की तरफ से राजीव सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी जर्नी और फाइनलिस्ट और आप विनर बन के आना. थैंक यू टू ऑल. थैंक यू सो मच. तो अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि एक आदमी के कैरेक्टर का फैसला एक औरत की गवाही करेगी. ये कैसा समय आ गया. ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो इस आदमी को, नजरें मिला के देखो, ध्यान से देखो इसकी वर्दी के तगमों को. ये देखो कितनी कम उम्र का नौजवान है. पर चिंता मत करो, जब ये 15 साल बाद जेल से बाहर आएगा ना, तो इसके चेहरे पर ये नूर नहीं होगा. इसकी जिंदगी के रंग, उम्मीदें, सब कुछ छूट चुका होगा. कमाल का काम किया है तूने. तुम पहले सिर्फ इनकी पॉकेट मारती थी, लेकिन अब तूने इन्हें जिंदगी के साथ भी खेलना शुरू कर दिया. KKHD शुरू से ही फॉलो करते आया हूँ. तो मुझे ये था कि मैं कब इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, एक सही टाइम की वेट होती है, तो इस बार हुआ. और KKHD की बात करूँ तो मैं फॉलो इसको करता हूँ और इसकी ये खासियत ये है कि इसके जजेस बहुत फेयर हैं. और ये जो शो है वो बच्चों के, लोगों के छुपे हुए टैलेंट को उभारने में, बाहर लाने में हेल्प करता है. ठीक है. और बाहर लाने में जजेस की बात करें तो वो अपने कमेंट्स के लिए बहुत ही फेयर है. वो किसी के साथ हम ये सोचेंगे वो पार्शलिटी कर सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. और वो हर किसी के टैलेंट को जजेस जो है छोटी छोटी बारीकियों के साथ उनको बताते हैं कि वो उन्हें उसमें इम्प्रूव करके वो अपने आप को नेक्स्ट टाइम के लिए और निखार सके और अपने टैलेंट को और आगे अपना आपको अडेप्ट कर सके उस टैलेंट के लिए. और इस
किसमें कितने दम शो की स्पेशलिटी ये है कि ये एक मल्टी टैलेंटेड शो है, मल्टी टैलेंटेड शो है और इसमें कोई एज बार नहीं है। हर एक उम्र का व्यक्ति और हर एक अपना कुछ भी उसके अंदर टैलेंट है, चाहे एक्टिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ग्रुप डांसिंग है, सोलो डांसिंग है, पेंटिंग है, मोनोलॉग है, मिमिक्री है। आपके अंदर कुछ भी अगर टैलेंट छुपा हुआ है तो वो आप इस शो में आके, इस प्लेटफॉर्म में आके आप उसको अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए ये शो की खासियत यही है कि एक कोई पर्टिकुलर आपके टैलेंट के लिए नहीं है, आप इसमें आके अपने कोई भी टैलेंट को आप जो है शो कर सकते हो। तो मेनली इसीलिए ये शो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये मल्टी टैलेंटेड शो है, किसी भी एज का व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर दूसरे बड़े रियलिटी शोज़ की बात करो तो वो काफ़ी हद तक अपने बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित रहते हैं। शायद वो दूर होने की वजह से छोटे शहरों के बच्चे नहीं जा पाते हैं या वैसे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये KKHD ऐसा है कि ये छोटे छोटे शहरों तक, एक कोने कोने तक बच्चों को वहाँ से लेके आता है, उनके टैलेंट को बाहर उभारता है। और हमारे यहाँ की बात करें तो हमारा एक छोटा सा टाउन ही है, तो ये कोई बड़ा है नहीं, होते कि छोटे से शहर से होने के बावजूद इसने मेरे को चांस दिया। इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये दुनिया के, इंडिया के हर एक कोने से बच्चे को अपनी टैलेंट को दिखाने का चांस देता है। और मैं पूरी होप करता हूँ कि अगर मैं फिनाले तक पहुँच गया हूँ तो इस शो को मैं जीतूँ और इस फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में मैं आगे तक जाऊँ, लाइफ में कुछ करके दिखाऊँ, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकूँ, अपने छोटे से टाउन का नाम रोशन कर सकूँ और अपनी फैमिली को आगे बढ़ते हुए देखो, अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखूँ। थैंक यू KKHD।